تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے بیٹھیں، ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اور کہاں سے کرتے ہیں شروع؟ علی گڑھ سے. ہم علی گڑھ سے پروگرام کو شروع کرتے ہیں دوبارہ سرنو. تو میں دعوت دوں گا اپنے ڈاکٹر احمد اللہ صدیقی صاحب بھائی کو کہ وہ اس موقع پہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کچھ کلمات کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ جو آن دی اسپاٹ حکم ملتا ہے نا، یہ ذرا بہت مشکل سے ہوتا ہے اس کو نبھانا، مگر ہاں لطف بھی اس میں آتا ہے. اب پروفیسر مسرور قریشی صاحب کی بات کو ایسی میری مجال کہاں کہ ان کی تعمیل نہ کروں، لیکن جہاں تک کتاب پڑھنے کا تعلق ہے تو جیسے دلاور فغار صاحب نے کہا کہ میں نے تو صرف سونگھ لیا ہے گلاب کو. مسرور صاحب دوڑ کے آئے، انہوں نے مجھے یہ کتاب دے دی، میں نے دیکھا 176 صفحے. اب یہ دیکھیں، بہرحال ساجدہ کاظمی صاحبہ میرے لیے کوئی نئی شاعرہ نہیں ہے. علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے تمام مشاعروں میں شریک ہوتی ہیں، اور شرکت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا جو لہجہ ہے اور جن اقدار کا پاس و لحاظ وہ اپنی شاعری میں رکھتی ہیں، ایسے شعراء اب کم ملتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ ان کا ترنم. تو اچھے شاعروں کی میں دو قسم رکھتا ہوں، ایک بہت اچھے شاعر اور ایک اچھے شاعر. تو میں ساجدہ کاظمی صاحبہ کو بہت اچھے شاعروں میں شاعرات میں شمار کرتا ہوں. اور بہت اچھے شاعر کی پہچان یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے میں نے جو پیش کھولا اور جو غزل ان کی میرے سامنے آئی، اس کے چند اشعار میں آپ سے شیئر کروں گا. اور آپ خود دیکھیے کہ ان کا لہجہ کتنا دبنگ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کا آہنگ ہے. ان کی شاعری میں ایک پیغام ہے، اس پیغام کو محسوس کرنا یہ سامع کی اپنی اپنی کیفیت و صلاحیت پہ منحصر ہے. چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سمندر کے کنارے اگر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس سے محسوس ہو سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو غوطہ خوری آتی ہو تو جتنا گہرا آپ سمندر میں اتر سکیں گے اتنے اچھے موتی آپ نکال سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساجدہ کاظمی کی شاعری بھی ایسی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو سمجھیں گے اتنی زیادہ آپ ان کی شاعری سے محظوظ بھی ہوں گے اور ان کی شاعری کے قدردانی بھی کر سکیں گے. تو یہ بہرحال میں نے کھولا اور یہ صفحہ نمبر 124 پہ یہ غزل سامنے آ گئی، اور میں نے کہا آپ کوئی اور مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے شاعروں کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہر شعر اور ہر غزل ان کی اچھی ہوتی ہے. تو چراغ شب ہوں، ہوا دو گے یا بجھا دو گے؟ چراغ شب ہوں، ہوا دو گے یا بجھا دو گے؟ تمام رات کے جلنے کا کیا صلہ دو گے؟ یہ ساجدہ کاظمی ہے. خدا کے واسطے دیکھو نہ میرے زخم جگر، خدا کے واسطے دیکھو نہ میرے زخم جگر، خود اپنے آپ کو کوسو گے بد دعا دو گے. اب دیکھیے دو شعر میں ایک پوری داستان کو انہوں نے سمو دیا ہے. خدا کے واسطے دیکھو نہ میرے زخم جگر، خود اپنے آپ کو کوسو گے بد دعا دو گے. میں لوٹ آؤں تمہاری قسم میں لوٹوں گی، میں لوٹ آؤں تمہاری قسم میں لوٹوں گی، جو ایک بار مجھے دل سے تم صدا دو گے. کہاں یہ سوچا تھا میں نے کبھی یہ جانے وفا، کہاں یہ سوچا تھا میں نے کبھی یہ جانے وفا، ہر ایک موڑ پہ تم زخم دل نیا دو گے. رکھے گی ساجدہ چارہ گری کی کس سے امید، مجھے تو زخم جگر کی تم ہی دوا دو گے. بہت بہت مبارک ہو ساجدہ صاحب، اور آپ کے تیسرے مجموعے کا بھی انتظار رہے گا. شکریہ.
ख़वातीन और हज़रात, मैं बाज़ाब्ता तौर पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब ज़मान मेहदी साहब को ब्रिज मीडिया की जानिब से और उनकी अहलिया को ब्रिज मीडिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और इस बात का बड़ी मुसरत के साथ ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कौंसल जनरल के साथ जो शिकागो में आए रब्ता रहा, समाजी तौर पे भी, अदबी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। और आज की इस महफिल में ये मैं चंद ऐसे अहबाब का तज़किरा करूँ जो बड़ी दूर दूर से तशरीफ़ लाएँ, ख़ास तौर से राजा याकूब साहब, शिकागो की बड़ी समाजी, अदबी और सियासी शख्सियतें, अली बख्तियारी साहब, आसिफ सलीम साहब और हमारे वकील जमाली साहब, अतर सिद्दीकी साहब और बाकी कुछ लोगों का मैं नाम ले चुका हूँ। और पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू अदब के जासूसी नावल लिखने वाले इब्न सफ़ी के साहबजादे अबरार सफ़ी साहब हमारी महफिल में जब आते हैं तो हम समझते हैं कि सारे मामलात जो हैं बिल्कुल हमारे मुताबिक चलेंगे। अबरार भाई ज़रा चेहरा करा दे ज़रा लोगों को, ये हमारे हाँ करा दे, कोई बात नहीं, पैगाम आ ही जाएगा, फिक्र क्यों करते हैं। मैं तमाम अहबाब की जानिब से कौंसल जनरल साहब की अहलिया को, जो कि साहिब कलम भी हैं और बच्चों के अदब पे लिखती हैं, मैं इसको एक ग्राम कदर इजाफा समझूंगा शिकागो लैंड में कि वो जब तक ज़मान साहब हैं वो यहाँ पे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़मान साहब नहीं जाएं, अगर प्रमोशन हो तो फिर ठीक है, वरना हमारे साथ ही रहें। इंशाअल्लाह शिकागो उनको पलकों पे बिठाएगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं थोड़ा सा अब ये गुफ्तगू से अलग चलता हूँ और मज़हर आलम साहब को से गुजारिश करूँगा कि वो अपने सोशल मीडिया की कार्रवाई को थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके हमारे सामने पेश करें। मज़हर आलम साहब, थोड़ी सी गर्दन घुमानी पड़ेगी साहब, इन दोनों स्क्रीनों पे नज़र रखना पड़ेगा, ये मजबूरी हमारी। यहाँ पर इस तरफ है, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम मौजूद हज़रात। अगर आप लोग चाहें तो उस तरफ कुर्सी रख दें। मैं ख्वातीन नहीं कहूँगा, सिर्फ हज़रात। जब हज़रात कहा तो सब शामिल हो गए। मुझे कहा जा रहा है वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और हमारे पास आधा घंटा है और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो 45 मिनट की है, तो हम आज जो है ज़ुहराने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर देंगे और वो हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इनवाइट करें ज़ुहराने के लिए। गालिबन ये 2020 की बात है। साजदन तो शनासाई थी कहीं से, तो फेसबुक पे इन्होंने मैसेज भेजा कि एक जश्न खालिद इरफान मुशायरा हुआ था, उसमें इन्होंने नज़म पढ़ी है। तो उन्होंने वो नज़म भेजी, मैंने सुनी, बहुत उम्दा तरन्नुम, बहुत अच्छी गज़ल। तो मैंने इनको कहा कि आपको अपना दीवान छापना चाहिए, तो कहने लगी हाँ छपाऊंगी, कोई काबिल एतबार आदमी मिल जाए। फिर बात आई गई हो गई। मैंने इनको ये भी कहा कि आप शामबर्ग लाइब्रेरी में जाएं और वहाँ पे प्रोग्राम होता है, फिर अमीर हैदर साहब से किसी तरह कांटेक्ट करें। तो इन्होंने वहाँ पे जाना शुरू किया और उसके बाद फिर तो स्काई इज द लिमिट, वो जो कहते हैं ना कि फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न है। तो फिर इन्होंने 2021 में उन्होंने तस्वीर भेजी कि इनका जख्म अभी भरे नहीं है वाला दीवान छप चुका है। तो बहुत उम्दा गज़लें थी इनका, वो तकरीबन 6 साल पहले शाये हो चुका था। अब दूसरा दीवान हमारे सामने आ गया है। जंजीर शनासाई में भी बहुत उम्दा शेर लिखे हैं और ख्वातीन के जज्बात की, एहसासात की अक्कासी की है। इनकी गज़लों में इश्क की हलावत भी है और टूटे हुए दुखे दिल की शिकायत भी। शाज़दा की गज़ल क्लासिकी रिवायत से पैवस्ता है और तगज़्ज़ुल की रंगीनी भी और समाजी और माशरती हालात का नोहा भी। इनके मजमूए कलाम के बारे में इजहार करते हुए साबिक़ सरबराह शोबा उर्दू जामिया कराची प्रोफेसर शादाब एहसानी कहते हैं कि शेरी तख्लीक के लिए फ़नी मशाक़ी भी ज़रूरी है। साजिदा काज़मी की शायरी में यह वस्फ़ मौजूद है। इनकी शायरी का सबसे नुमाया पहलू इस मादियत पसंद और मतलब परस्त माहौल से गुरीज है कि वो अपने अशार में आला इंसानी दायर की नुमाइंदा नजर आती हैं, जो तनज़्ज़ुल के इस दौर में धुंधलाती जा रही है। और इस ज़मन में खुसूसन आखिर में खालिद इरफान साहब की ये सतूर बहुत अहम है कि उर्दू में हिज्र विसाल की अलामत सदियों से चली आ रही है, लेकिन साजिदा ने इन कैफियत को अपने अंदाज में बयान करके अपने लफ्ज़ों को एतबार बख्शा है। अब हम चलते हैं
प्रेजेंटेशन की तरफ जो मैंने इनकी जमा की हुई थी, ये तो हमारा ब्रोशर है, ये हम पेशकश जो हमारे ब्रीज मीडिया की है यूएसए ने, और ये स्लाइड आपको बता रही है कि इस यूट्यूब चैनल पर हमने अब तक होने वाले तमाम उर्दू कॉन्फ्रेंस के मुशायरों के सारे वो जो है टेप डाल दिए हैं, तो इस लिंक पे जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं। और ये आज की तकरीब के लिए है जंजीर शनासाई। साजिदा काज़मी की जंजीर शनासाई पे 2 लोगों ने फ्लैप पे लिखा हुआ है, वो आप इनकी किताब में जो है वो पढ़ सकते हैं। एक तो हैं जफर मोहम्मद खान साहब हैं और डॉक्टर शादाब एहसानी साहब हैं। उसके बाद ये जंग अखबार में इनकी जब जंजीर शनासाई हुई तो संडे मैगजीन में आर्टिकल लिखा था। ये इनका पहला मजमूआ ज़ख्म भी भरे नहीं की तस्वीरें जो मार्च 19 को, जैसा रियाज नाइक साहब ने बताया, मार्च 19 2023 को इसकी जो है वो रुमाई की थी अमीन हैदर साहब की तंजीम ने दिला पार्क की लाइब्रेरी में। ये भी ताहिर अलीदा का मजमून जज्बा पोस्ट में आया था, तो वो भी पढ़ने के काबिल है। ये भी जंग में इनकी तस्वीर गजल शाई हुई थी साजिदा काज़मी की। ये इनकी जो अमीर हैदर साहब ने रुनुमाई की थी उसकी तस्वीर है पहली किताब की, ये भी उसी की तस्वीर है। न सिर्फ शिकागो में बल्कि पाकिस्तान में भी तकरीब का इजरा हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और ये उसकी जो है वो तस्वीर हैं। ये भी पाकिस्तान की हैं। फिर ये अपनी किताबों को यहाँ पे भी ये करेंगी, तो आप लोग यहाँ से इनसे किताबें जरूर लीजिएगा। और ये अभी जो है खराज तहसीन हमारे नून जावेद साहब ने पेश किया था, इसके साथ जो है मैं इजाज़त चाहूँगा और मुसलुक भाई साहब से। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, आज मजहर भाई ने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और साजिदा काज़मी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी जंजीर शनासाई के बारे में बयान करें और ये जंजीर कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जा रही है, कुछ उसके बारे में बताएं ताकि हम लोग मोहतात रहें इस जंजीर से बचने के लिए। ये अच्छी जंजीर है, वैसे किताब एक ऐसी जंजीर है तो उससे बंद के रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम ख़वातीन हज़रात, जनाब काउंसिल जनरल मेहदी साहब, समान मेहदी साहब, सदर मुशायरा या सदर मजलिस तौफीक अहमद अंसारी, रियाज नियाज़ी साहब, गौसिया सुल्ताना और मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन ताहिरा रिदा, और आप तमाम लोगों की बड़ी मशहूर और ममनून हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और बड़ी तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इससे पहले जंजीर शनासाई से पहले मेरा एक और मजमुआ आ चुका है जो अमीन हैदर साहब ने उसकी तकरीब की थी, और सच पूछिए तो उर्दू अदब की दुनिया में मुझे शिकागो में रोशनास कराने वाले ही अमीन हैदर साहब हैं और मैं इनकी बात कर रही हूँ। मुशायरों में आना जाना रहता है, सारे ही तकरीबन शनासा चेहरे हैं जो मेरे बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद 1-2 लोग ऐसे हैं जो ना जानते हों, तो बस मैं उनको मुख्तसर सा बताना चाहूँगी कि मैंने जामिया गर्ल्स स्कूल से मैट्रिक किया, पीस टीचर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और इसके बाद मैंने पाकिस्तान स्टील मिल्स में जॉब की, और 83 में मेरी शादी हुई। और इत्तेफाक है कि मेरे शौहर जो हैं वो भी उसी डिपार्टमेंट जगह से, उसी अदारे से वाबस्ता थे, और वो मेट्रोलॉजी इंजीनियर हैं। उसके बाद अब जब हम यहाँ आ गए, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वा बेटे भी दिए, मेरे बड़े साहबजादे हैं, और मेरा बेटा जो है वो बहुत दूर से आया है, मिशिगन में रहता है, रात ही पहुँचा,
اور میری خوشیوں میں چار چاند لگ گئے جب میرے پوتے اور میری پوتیاں بھی اس میں شامل ہو گئی، میری بڑی بہنیں بھی، اور آپ سب معزز کرم فرما میرے ساتھ ہیں۔ زنجیر شناسائی کے بارے میں کوئی اتنا خاص میں نہیں کہنا چاہ رہی، کیونکہ جب پہلے کہا کہ زخم ابھی بھرے نہیں تو سب نے پوچھا کہ زخم کیوں نہیں بھرے اور یہ زخم کس نے دے دیے، تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی زخم جو ہے یہ ایسی باتیں جو ہیں مجلس میں تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ گھر بھی واپس جانا ہوتا ہے، لیکن بس سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے اپنی والدہ کے انتقال کا ایسا غم تھا کہ وہ میں نے شاعری کی صورت میں پیش کیا۔ اسی حساب سے میں ایک شعر آپ کی خدمت میں بلکہ ایک قطعہ پیش کروں گی کہ بہت تھکنے لگے اعصاب میرے، تم اپنی یاد پہ پہرے بٹھا دو، کئی راتوں کی میں جاگی ہوئی ہوں، مجھے آغوش میں لو ماں سلا دو۔ ایک اور شعر آپ لوگوں کی نظر کے، رونق انجمن مان پڑنے لگی، رونق انجمن مان پڑنے لگی، بجھ گیا دل سر شام کیا کیجیے، دل بہت مضطرب ہے کئی روز سے، خیر ہو ان کے گھر یہ دعا کیجیے۔ اور اگر وقت ہے تو ایک ترنم سے جی 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 مجھے یاد ہے۔ تو میرے صاحبزادے چلے گئے یہاں سے، جنرل موٹر میں ان کی جاب ہوئی، اور میں اپنے بڑے پوتے ازمیر خان سے بے انتہا اٹیچ تھی، اور اس کے لیے مجھے لگتا تھا میری کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حقیقت میں یہ ہوا کہ میں بیٹھی بھی کوئی کام کر رہی تھی، اور ایک شعر بھی میرے ساتھ کہا اور جو میں آپ کو سناتی ہوں، اور اچانک مجھے آواز آئی دادو، اور میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو وہ میرا پوتا تھا، اور اس کے لیے میں نے یہ شعر کہا تھا، میرے گھر وہ ماہ تمام آ رہا ہے، میرے لال کے ساتھ لال آ رہا ہے، کیونکہ بچوں کی جدائی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے اور مجبوری تھی جانا۔ اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور پوتا اور 2 پوتیاں اور دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان سمجھ لیتا ہے۔ ایک غزل پیش کر دیتی ہوں، 3-4 اشعار جو بہت مجھ سے کہا بھی جاتا ہے۔ وہ میرے ہجر میں ایک شب گزارتا تو صحیح، میں لوٹ آتی مجھے وہ پکارتا تو صحیح، مجھے یقین تھا اس بار جیت لوں گی اسے، وہ میرے نام کا سکہ اچھالتا تو صحیح، قسم خدا کی نہ سائل کو لوٹنے دیتی، وہ آ کے مجھ سے میرا ہاتھ مانگتا تو صحیح۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں میں خاص طور سے اپنی بہو نورین اور بیٹا عمیر زہیب ان سب کے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ آ کے کافی ڈیکوریٹ کیا، اور میری بہو جو ہے وہ خاص ایونٹ ڈیزائنر بھی ہے، تو اس نے بڑی محنت کی، چھوٹی بچی کے ساتھ وہ آئی ہے، اس کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔
किताबों में सूखे फूलों को रखने का रिवाज सबने देखा होगा। देखिए मोर का पंख साजदा आज भी रखती हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं गुजारिश करूंगा अपने सीनियर कम्युनिटी रहनुमा राजा याकूब साहब से कि वो दो चंद लफ्ज़ जो है वो आज की इस अदबी महफिल में गोशगुजार करें। इनके बाद जो है वो कुछ ताइफ की रस्में भी होंगी, तो अब सब लोग हमारे साथ ताउन भी करेंगे और फिर अभी तौम का भी इंतज़ाम है। दस्त खुद दान खुद तेरी के साथ आइए रहता। शुक्रिया मसरूर भाई। मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात और सदर महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मसरूर कुरैशी साहब और ब्रिज मीडिया की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये पिछले 16-17 साल से, बल्कि हमारी शनासाई तो इससे बहुत देर से है, इन्होंने इस अदब की महफिलों को और खूबसूरत महफिलों को इन्होंने जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब कोई आप तंज़ीमी तौर पे काम करते हैं, उसका फाइनेंशियल टाइम बहुत सारे मामलात होते हैं जो कि एक सरबराह या वो टीम लेके चलती है। इट्स नॉट इजी जॉब। दूसरी बात, हमारी बहन ने जो किताब लिखी है ज़ंजीर शनासाई, गो कि मैं तसनीफ का आदमी और अदब का आदमी नहीं हूँ, और न सर मेरा आर्टिकल लिखना मेरा है वो शुक्र है, मैं लिख सकता हूँ, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया की तारीख में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी शर और खैर की तारीखें मुआशरों के अंदर पनपती है, वो ज़ंजीर शनासाई से ही पनपती है। इसलिए कि जब मुआशरों के अंदर शनासाई होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, तो उस मुआशरों के अंदर जो है फिर कामयाबियाँ भी होती है, खुशी भी होती है, आसाइशें भी होती है, कामयाबियाँ भी होती हैं। तो मैं बहन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस किताब का टाइटल बहुत खूबसूरत रखा, और उम्मीद है कि जितना ये खूबसूरत टाइटल है ज़ंजीर शनासाई, क्योंकि शेर भी जो है वो इतने खूबसूरत होंगे। और जाते जाते एक छोटा सा बयान कर देता हूँ, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग और आए। लेट 70s में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक मुशायरा था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग में स्टडी की थी। तो बहुत बड़ा मुशायरा था, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से नौजवान शुरा जो है उसमें आए हुए थे। तो एक बड़ी इंटेलेक्चुअल ख़वातीन थी जिन्होंने जज्बात को ऐसे रखा। उन्होंने शेर पढ़ा, मैं लेट थी, मैं लेट भी, वो मेरे ऊपर लेटा था। अब इससे पूरा जो हंगामा शुरू हो गया। मैं प्यार से कुछ कह न सकी, वो मेरा प्यारा बेटा था। इसी तरह फिर एक और मंजिला नौजवान उठा, उसने कहा मैं लेट था, मैं लेट हुआ, वो मेरे ऊपर लेटी थी, मैं प्यार से कुछ कह न सका, वो मेरी प्यारी बेटी थी। तो चूंकि ये अदब की महफिल है तो मैं मादर चाहूंगा अगर कोई चीज, तो अरिस्टोटेल या अरस्तु कहते हैं कि माशरे के 3 क्लासेस होती हैं, एक कंज्यूमर्स, दूसरे इंटेलेक्चुअल्स और तीसरे सिपा। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स या शुरा जो है माशरे के साथ को, माशरे के जज्बात को, इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज कायम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मसरूर कुरैशी साहब का और उनकी टीम का ये कारनामा है कि इन्होंने उन अदबी चीज़ों को और माशरे के एहसास, हमारी जो शनाख्त है सोसाइटी के अंदर, उसको जिंदा रखा हुआ है। और इनकी इस तख्लीक को और इनकी कोशिशों को बस खराज तहसीन पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया याकूब साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। राया याकूब साहब, पाकिस्तान की एक बड़ी हिस्ट्री है शिकागो की। शहर सारा ही मुझे तेरा तलबगार लगे, यानी हर शख्स यहाँ नरगिस से बीमार लगा। बुलाता हूँ अपने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब जमान मेहदी साहब को, हर शख्स आपके सुनने का बेताब है। और
मुझे उम्मीद है कि ब्रिज मीडिया के साथ इनकी सरपरस्ती हमेशा जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं जो हमारे मेज़बान हैं ब्रिज मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी जानिब से, अपनी अहलिया की जानिब से इस दावत का। मेरे ग़ालिबन कुछ जो हैं हमारे साथी पहले अपने ख़यालात पेश कर चुके हैं, तो उनको मैं नहीं सुन चुका, ये मेरी महरूमी है। बट मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा किसी मौका पर हम उनसे भी फैसला होंगे। इन महाफिल की वैसे हर यहाँ पे माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में है, और उससे भी बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत एक्टिव है, और उससे भी ज़्यादा खूबी ये है कि ज़िंदगी के या किसी माशरे के जो तमाम रंग होते हैं, किसी सकाफ़त के, वो तमाम रंग यहाँ नुमायाँ, और जिसका मज़ा ये महफिल की है। तो हर जगह जाना होता है, लेकिन ये एक ऐसी महफिल है जहाँ मैं अपने आप को कुछ कमज़ोर महसूस कर रहा होता हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि इस महफिल में मैं थोड़ा सा आई मीन टू स्टील एन आइडिया फ्रॉम द फर्स्ट स्पीकर सदीकी साहब। हाँ, इस महफिल में ये होता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सारे ही अच्छे होते हैं। तो उसमें जब मैं घिर जाता हूँ तो फिर मुझे उसमें अपना तयन करना मुश्किल हो जाता है कि मैं इसमें कहाँ बढ़ूँ। बहरहाल आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। सदर महफिल इन सब से मेरी एक दो दफ़ा मुलाकात रही है, मैं इन सब का कदरदान भी हूँ, और जिनके मजमूए मेरे पास हैं, मैं कभी कभार दफ्तर में काम चोरी करके उनको पढ़ भी लेता हूँ। यहाँ पे सदीकी साहब तशरीफ़ लाए, उनको बताया गया कि अलीगढ़ के तर्जुमान हैं, तो अलीगढ़ से मेरा भी कुछ ख़ानदानी रिश्ता है, हमारे बुज़ुर्गों ने वहाँ पे तालीम हासिल की है, और मेरी नातमाम ख्वाहिशात में से ये भी है कि कभी मुझे कैरियर में या कभी उसके बाद मौका मिले तो मंदिर और दीवार को मैं जाके देखूँ जहाँ मेरे बुज़ुर्गों ने कई माह साल गुजारे थे। उसके बाद यहाँ पे जिक्र हुआ इब्न सफ़ी के, अबरार सफ़ी साहब, मैं सही नाम ले रहा हूँ जी आपका, अबरार सफ़ी साहब। अच्छा, इब्न सफ़ी साहब से ताल्लुक़ जो है मेरा वो काफ़ी पुराना है, ज़ाती ताल्लुक़ तो नहीं है उनकी किताबों से, जी हम सब का है। और एक ज़माना था जब हमारे बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 80s की बात है, मैं तालिब इल्म था, स्कूल तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, उस वक्त स्कूल का तालिब इल्म था, और उस ज़माने में हमारी जो है अलमारियों में, कपड़ों में, रज़ाइयों के नीचे से, तकियों के नीचे से इब्न सफ़ी के नावल बरामद हुआ करते थे। बहरहाल ये वापस इस पे मौजू पे आते हैं। मैं मैडम साजिदा को मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी किताब की लॉन्चिंग पे। अच्छी शायरी जो है वो हकीकत ये है कि मैं शायद अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि किसी की भी शायरी को, चाहे उसकी फ़नी पुख्तगी है या ख़याल की रिफ़त है या उसके अंदर जो गहराई है, उसको मैं जज कर सकूँ। मेरे जैसे शख्स के लिए अच्छी शायरी वो है जो समझ में आ जाए और वो अपने कारी के साथ एक ताल्लुक़ सा पैदा कर ले। और इस जी जंजीर, हाँ एक जंजीर सी बंद है उसके। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये कि मैं जब यहाँ पर आया और मैं बैठा तो नियाज़ी साहब ने इंडिकेट किया, मुझे इशारा किया कि यहाँ पे मर्द शायर तो बहुत थे लेकिन ख़वातीन शोरा जो थी वो बहुत कम थी। और उस वक़्त जब मैं मैडम का कलाम सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि एक शायरा जो है वो माँ कैसी होती है। बिल्कुल शायर एक बारीक ख़यालात को, बारीक जज्बात को समझता है, उनका तजिया करता है, उनसे मुतासिर होता है, फिर उनको ऐसे इस तरह बयान करता है कि लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। तो और उसी ख्याल के तसलसल में मुझे फिर यूँ लगा कि शायद हर खातून किसी न किसी दर्जे में, हर माँ किसी न किसी दर्जे में शायरा ज़रूर होती है। तो आज इस महफिल में ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और मुझे यकीन है कि आज से सब शायरात हैं, बस कलाम की कमी है। तो इंशाअल्लाह ये मामला भी जारी रहेगा। मैं बात को अब मुकम्मल करूँगा। इनकी किताब का मुझे ज़्यादा अभी मुताला करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में मैंने इनकी एक दो जो गज़लें हैं उनको पढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किताब का उन्होंने जो उन्वान सोचा है ज़ंजीर शनासाई, इसने मुझे थोड़ा सा आप यूँ समझ ले अपनी ग्रिप में ले लिया और मैं इसके ऊपर सोचता रहा कि वाकई शनासाई जो होती है
وہ ایک تعلق پیدا کرتی ہے. اور میں بحیثیت کونسل جنرل پاکستان یہ میری ذمہ داری بھی ہے, یہ میرا پیشن بھی ہے, میرا شوق بھی ہے, ایک مشن بھی کہہ دیں آپ. اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات, بالخصوص آپ کی جو سیکنڈ جنریشن ہے, جو تھرڈ جنریشن ہے, ان کی جو زنجیر شناسائی اپنے وطن کے ساتھ ہے اس کو مضبوط رکھیے, اس میں آپ انویسٹ کرتے رہیے. اور مجھے امید ہے کہ یہ تمام محافل جو ہیں یہ اس کوشش کی جانب معاون ثابت ہوں گی. ان سب کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جناب رسول قریشی صاحب کا, برج میڈیا کا, اور تمام حضرات کا. آپ سب سے مل کے دوبارہ بہت خوشی ہوئی, اور انشاءاللہ ایسی محفل میں دوبارہ ملاقات ہوتی رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ نعمان مہدی صاحب. ساجدہ کہتی ہیں کہ ایک دیرینہ تعلق تھا نبھائے رکھتے, کیا بگڑ جاتا کہ بس بات بنائے رکھتے. اور مسرور قریشی کہتے ہیں ایک دیرینہ تعلق ہے بنائے رکھنا, کچھ نہ بگڑے گا بات بنائے رکھنا. تو مجھے یقین ہے کہ کونسل جنرل صاحب کی سرپرستی جاری رہے گی اسی طرح. یہ خوشی کی بات ہے جو ابن صفی کے بارے میں جو بات انہوں نے بتائی اس عمل سے ہم بھی گزر چکے ہیں. کتاب ایک دی دوسری لی چارنے والی لائبریری سے, بلکہ آنے والی تھی اس زمانے میں 74-76 کے زمانے میں. ابرار بھائی نہیں بولیں گے کچھ بھی, لیکن یہ کہ بہرحال اگر آج ابن صفی زندہ ہوتے, اگر آج ابن صفی زندہ ہوتے تو جو دنیا کی صورتحال چل رہی ہے اس میں یقیناً وہ کوئی فیصلہ کن مارکت الآراء ناول ضرور لکھتے. اور دیکھیے ان کی کتابوں میں پڑھیں, آج کے حالات مل جائیں گے. تو ابن صفی پہ گزشتہ سال عالمی اردو کانفرنس میں ایک سیشن رکھا گیا تھا, اور آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے محفلوں میں اجاگر کرتے رہیں. بہت شکریہ کونسل جنرل صاحب. میں اب دعوت دوں گا صاحب صدر کو کہ وہ بہتے ہوئے دریا کو کوزے میں کس طرح بناتے ہیں. جناب صاحب صدر. میں اس لیے کہ اگر میں کہتا کہ کم وقت لیں تو پھر مجھے واپسی میں مشکل ہوتی, لہٰذا میں نے ایک تھوڑا سا, مجھے یقین ہے کہ وہ میرا خیال رکھیں گے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. آپ نے بہت لوگوں کو سنا اور بہت سارے خیالات کا اظہار رہا. بہرحال ساجدہ کاظمی سے میں اس وقت سے واقف ہوں جب وہ مشاعرے میں تشریف لائیں اور ترنم کے ساتھ اپنا کلام سناتی رہیں. اور یہ واقعی ہے, ایک ایسا ہے کہ ایک بہترین شاعرہ ہیں اور عمدہ کلام کہتی ہیں. یہی انداز ہوتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے اپنے خیالات کو حاضرین تک پہنچا دیں اور اس میں ایک نئی جدت پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کتاب تو میں نے صرف ایسی ہی دیکھی اور PDF اس کا اویلیبل نہیں تھا, اس لیے خاص تبصرہ کرنے سے معذرت ہے, مگر ٹائم بھی بہت کم ہے ہمارے پاس, اس کا احساس ہے. اس لیے میں صرف مبارکباد پیش کروں گا ساجدہ کو کہ آج یہ بہترین کتاب سامنے آئی ہے, اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کے کلام زیادہ سے زیادہ کتابی صورت میں سامنے آئے گا, اور یہ ایک طریقے سے تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے کتابی صورت میں یا الیکٹرانکلی, جس طریقے سے بھی ہو. یہ بہت ضروری بات ہے کہ کتابیں شائع کی جائیں اور اس کی قدر کی جائے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑا کام.